Okay. Okay, students. So since you know that we have started chapter 15, air around us. We have studied about air. Yesterday हमने air के बारे में कल कुछ चीजें पढ़ी थी. Can anybody tell me about the properties of air? Yes. One by one. Ma'am, air is transparent. Just raise your hands. Ma'am, we can't see air, but Okay. we can feel air. Okay. Air is present everywhere. Okay, so one by one I'm asking Ankit Kumar Swain. Just speak out loud and tell me about first property of air that you have studied. Ankit. Air is everywhere. Yes. Amit Kumar Pal. Yes, ma'am. What is the second property of air? Air is present everywhere. And after this you have studied various things about air. तो air के बारे में आपने और क्या पढ़ा था? Ma'am, the second property of the air is that Ma'am, we cannot see the air, but we feel it. Very good. We cannot see air, but we can feel it. Second, third one. Is it air is transparent or not? Ma'am, transparent. Okay. Ma'am, transparent. Okay, just wait for a while. So after this, we have studied about that air is transparent. Next thing. आप लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था. What do you understand by atmosphere? Yes. What is atmosphere? Ma'am, a thin layer of earth. Very good. A thin layer which around the earth is known as atmosphere. This layer is made of air. इस layer के अंदर क्या होती है? This layer is made of air and this surrounded the earth from all the side. That is why we named it as atmosphere. हम इसको क्या बोलते थे? atmosphere. Atmosphere. Very good. After this, you have studied about weathercock. What is weathercock? Yes, ma'am. What is weathercock? Ma'am, weather. Ma'am, it shows direction of air. Okay. It shows the direction of moving air. Ma'am, if it is moving, rest it. The Okay. So weathercock shows you the motion of moving air. Clear? After this, we have studied this property and we have understood that air occupies space. What we have understood? That air occupies space. आपको मैंने पहली वाली एक्टिविटी बताई थी. इस एक्टिविटी में आपने पढ़ा था कि जो एयर होती है, इट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. For example, this empty bottle is having air in it. इस empty bottle के अंदर क्या थी? Air थी. That is why when you just put it down, invert it. अगर आप इसे upside down पानी के अंदर डालोगे तो पानी इसके अंदर नहीं भर रहा था. लेकिन जैसे ही आपने बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट किया, when you tilt the bottle, तो बॉटल टिल्ट करने से क्या हुआ? टेढ़ा करने से क्या हुआ? बॉटल के अंदर जो एयर थी उसको जगह मिल गई निकलने के लिए. ये जो बॉटल का माउथ था, इसे एयर बाहर निकलने लग गई और अंदर कौन जाने लग गया? वाटर. ठीक है? सो यस. मैम मग में भी तो होता है ना. मैम को भी डालो तो Yes. पहले नहीं होता. अगर आपके घर में मग हो, इफ यू आर हैविंग मग एट योर होम, सो व्हाट यू विल डू, अगर आप मग में ऐसे करोगे, जैसे अगर आपके पास घर में एक बाल्टी है, ठीक है, यू आर हैविंग अ बकेट, और अगर आप अपने मग को सीधे रखोगे तो उसमें पानी नहीं जाएगा. और व्हेन यू जस्ट टिल्ट इट, जैसे ही आप उसे टिल्ट करोगे, जैसे ही आप अपने मग को टिल्ट करोगे, तो यहाँ से आपको एयर बबल्स निकलते हुए दिखेंगे. क्या निकलते हुए दिखेंगे? एयर बबल्स.
और इसके इस मग के अंदर क्या जाएगा? वाटर. व्हाट विल गो इनसाइड? वाटर. एंड व्हाट विल गो कम्स आउटसाइड? एयर बबल्स. तो इससे हमें समझ में आता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर या एयर जो होती है वो क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. After this, we have to understand what is air made up of. Air किस चीज से बनती है? ठीक है. The next thing that we have to study is what is air made up of. What is air made of? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. ऐसा था जब 18th century तक लोगों को लगता था कि जो एयर है वो किसी एक चीज से बनी हुई है. ठीक है. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो. एक्सपेरिमेंट्स में हमको पता चलता है कि जो एयर होती है उसमें सिर्फ कोई एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि उसमें वेरियस सब्सटेंसेस हैं. वी हैव अंडरस्टूड दैट एयर is not made from one substance. Air is actually a mixture of many gases. एयर के अंदर क्या होते हैं? वेरियस गैसेस प्रेजेंट होती हैं. So I am going to show you a small video, just watch it, and then I will show you that what are the various gases that air is having. Clear? Mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains because as they go high up in the mountains, the oxygen level in the air reduces. What is air made up of? Air is a mixture of many gases. It is mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, And the sound is not dust coming. and smoke. Wait. Water vapor. So what you have understood? First thing, that air is made of various gases. You can see on the screen that the air which we are talking about is actually made of various gases. You can see oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, dust and smoke. Is it clear? Yes, ma'am. इसका मतलब जो आपके चारों तरफ एयर है उसमें कोई सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, उसमें वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट. उस एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन गैस भी है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. ऑल्सो दिस एयर इज हैविंग वाटर वेपर. इस एयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर. यस बेटा. Ma'am, is air consists of methane? Yes. Methane, argon or chlorine and so many other gases. There are so many other gases which are present in air. लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. सबसे ज्यादा होती है. 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, 21% ऑक्सीजन, 0.1 समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर 0. वेरी स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर एंड डस्ट एंड स्मोक. आजकल आप देखते हो जब आप सड़क पे जाते हो तो यू कैन सी कि जब डस्ट के पार्टिकल्स भी आपको एयर में दिखते हैं तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड होते हैं. समझ में आया? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट एंड स्मोक. यस बेटा. Ma'am, nitrogen is a very light gas. यस. आई विल. अभी हम लोग पहले ये पढ़ रहे हैं बेटा कि एयर में कौन कौन सी गैस होती है. उसके बाद हम लोग 1 by 1 सारी गैसेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. पहले हमें ये समझना है कि कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है. उसके बाद हम हर एक गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी होती है, व्हाई ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट. वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? हम लोग 1 by 1 हर गैस के बारे में पढ़ेंगे. So now I am just starting it with water vapor. Clear? And please mute your mind so that you can start. You can And dust and smoke. Water vapor. We all know that air contains water vapor. Let us perform a small activity and see.
Fill a glass with ice cold water. Droplet of water can be observed on the outer surface of the glass after some time. This is water presenting air. Air has water vapor. When it comes in contact with a cold surface, the water vapor condenses to form water. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. Oxygen. नाउ अभी आपने सबसे पहले गैस के बारे में पढ़ा, वो क्या होती है? वाटर वेपर. वाटर वेपर वाज व्हाट? वाटर वेपर एक्चुअली क्या होते हैं? These are small particles of water which are present in air. अब इनको आपने देखा कैसे, वो कैसे दिखते हैं? आप लोग कभी आपने कभी ग्लास में ठंडा पानी लिया है? जब आप ठंडा पानी ग्लास में लोगे तो चारों तरफ देखते बबल्स बबल्स बन जाते हैं. ग्लास के बाहर आप देखते हैं ना, ठंडे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. वो एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर द वाटर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एयर. वो एयर में प्रेजेंट वाटर पार्टिकल्स होते हैं एंड दे स्टक ओवर द ग्लास सरफेस, और वो आपके पूरे ग्लास के सरफेस के ऊपर आके क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं. So when it comes, air has water vapor. We know that water is present in air. When it comes in contact with a cold surface, the water vapor condenses to form water. जैसे ही वाटर में, एयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जब उसको कोई कोल्ड सरफेस मिल जाती है तो वो क्या होता है? इट गेट कंडेंस ओवर दैट सरफेस. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर. या आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे वाटर साइकिल. वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस के लिए एयर में वाटर वेपर बहुत जरूरी है. Is important for the water cycle in nature. Now next gas is oxygen. Oxygen is essential for burning. Let us perform a small activity. Fix two small candles of the same size in the middle of two hollow containers. Now, fill the containers with some water. Light the candles and then cover each one of them with an inverted glass, one much taller than the other. Observe carefully what happens to the burning candles and water level. Burning can occur only in the presence of oxygen. We see that one component of air is oxygen. Oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When most of this oxygen is used up by burning the candle, it can no longer burn and blows out. Also, some of the space occupied by the oxygen inside the glass becomes empty and water rises up to fill and occupy this space. Nitrogen, the Okay. cycle. Begin with of sunlight to us. Nitrogen, which does not support. Wait. The most important thing you know is that the major gas or the important gas which is present in air is oxygen. ऑक्सीजन आप छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ऑक्सीजन एक तो आपको बहुत जरूरत होती है ऑक्सीजन की. क्यों? फॉर द ब्रीदिंग. आपको सांस लेने के लिए भी कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन. इज इट करेक्ट? आप कौन सी गैस को इनहेल करते हो स्टूडेंट्स ऑन टीम्स? आप लोग ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन. Okay, your mic is not working properly. Listen to me. So you use, yes, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. ये आपने बहुत छोटे से पढ़ा है कि हम लोग सांस जो लेते हैं उसमें हम कौन सी गैस को इनसाइड लेते हैं? ऑक्सीजन. Second important property of oxygen is that oxygen helps in burning. अगर कोई भी चीज आपको बर्न करनी है तो वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट होनी चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है. इसको जानने के लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? वी हैव टेकन 2 कंटेनर्स और हमने दोनों कंटेनर्स में 2 कैंडल ली और दोनों कैंडल्स को हमने जला दिया. ठीक है. और उन दोनों कैंडल्स के ऊपर हमने क्या रख दिए? 2 इन्वर्टेड ग्लास के सिलेंडर्स को रख दिया. आप देखोगे जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा एयर होगी. ठीक है. इस वाले सिलेंडर की हाइट ज्यादा है तो इसके अंदर एयर ज्यादा होगी. एंड जो दूसरा वाला है, So this oxygen is. वेट, तो दूसरा वाला कंटेनर है वो कैसा होगा? The board is not working. Wait a minute. मैम
condenses to form water. मैम Water अगर burn and look. मैम Page अगर 5, your water condenses to form water. The present चौड़ाई भी ज्यादा होनी चाहिए. तो सी वी अंडरस्टूड व्हाट, अगर कंटेनर की हाइट ज्यादा है तो उसमें अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा होगी, और अगर एयर ज्यादा होगी तो कौन सी गैस ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन. अगर इसकी कंटेनर की हाइट कम है तो इसमें क्या होगी, एयर कम होगी और ऑक्सीजन कम होगी. तो जब तक कैंडल को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक कैंडल क्या होती रहेगी, जलती रहेगी. और जैसे ही ऑक्सीजन पूरी यूज हो जाएगी बर्निंग में तो आपका जो कैंडल्स है वो क्या हो जाएंगे, दे विल व्हाट हैपन, दे विल ब्लोज आउट. ठीक है, वो बुझ जाएंगे. समझ में आया? हम ऐसे चौड़ाई में ज्यादा होता तो क्या होता, हम छोटा तो भी होता. छोटा होता लेकिन अगर चौड़ा होता तो भी उसमें गैस ज्यादा भरी होती है ना, और अगर हाइट कम होती है. लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम चौड़ाई भी देखेंगे और उसका हम लंबाई भी देखेंगे कि लेंथ भी क्या हो कंटेनर का ज्यादा हो और उसकी हाइट. यहाँ पे दोनों की चौड़ाई सेम है बट लेंथ इज कम और ज्यादा. अंडरस्टूड? So what we understood, when most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blows out. जब तक ऑक्सीजन अंदर प्रेजेंट रहेगी वो कैंडल जल्दी रहेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन यूज हो जाएगी कैंडल विल ब्लोज आउट. Also some of the space occupied by the oxygen inside the glass become empty and the water rises up to fill or occupy this space. तो जिस वाटर के अंदर आपने वो रखा हुआ है तो वो जगह मिल जाएगी, ऑक्सीजन जो खत्म हो जाएगी उस जगह पे क्या आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा. क्लियर? आफ्टर दिस नेक्स्ट गैस, water rises up to fill and occupy this space. Nitrogen. The remaining air inside the glass contains some components like nitrogen, which does not support burning. Carbon dioxide. In a closed room, if there is some material that is burning, we feel suffocated. This is due to excess of carbon dioxide that is accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide, what is carbon dioxide? It is a gas which is present, also present. जो गैस आप एक्सहेल करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड आप कहाँ देख सकते हो, जब भी आप कभी कोई चीज बर्न करते हो तो आप, अगर रूम आपका बंद है तो आप क्या करते हो, आप सफोकेट फील करते हो. और वो सफोकेट क्यों फील करते हो, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि उस रूम में कौन सी गैस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है. आपको पता है लोग कहते हैं कि रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो. सो कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, वी फील सफोकेटेड. This is due to excess of carbon dioxide that is accumulating in the room as the burning continues. Clear? Carbon dioxide समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, please explain it again. Okay, I'll just explain. Wait. Come to the chapter once. Okay, so the first gas we have studied was water vapor. So you can see in the textbook also we have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when the air comes in contact with a cool surface. अभी आपने देखा था ना ग्लास के पानी, जब ग्लास में ठंडा पानी भरा हुआ था तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं. And those water droplets shows you that water was present in air. The next important one is oxygen gas. अभी आपने ये ऑक्सीजन वाला किया था. ऑक्सीजन में अगर आप यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो दैट वी आर हैविंग 2 कैंडल्स एंड इफ वी पुट द ग्लास ओवर 1 कैंडल, व्हिच कैंडल विल ब्लोज आउट, कौन सी कैंडल बुझ जाएगी? The candle which is under the glass. टेल मी फास्ट स्टूडेंट्स ऑन टीम्स, जल्दी बताइए मुझे इसमें से कौन सी कैंडल ब्लोज आउट हो जाएगी, फर्स्ट वन, और जिसके हम लोग ग्लास टम्बलर रखेंगे वो वाली. जिसके ऊपर ग्लास Very good. Because when we put the glass tumbler over this, the oxygen present in the glass will be very less. और यहाँ पे इस वाली कैंडल को क्या हो रहा है, सारे एयर से ऑक्सीजन मिल रही है, और इस वाली गैस इसको क्या नहीं मिलेगी, इसको थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये ब्लोज आउट हो जाएगी. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये आप लोग घर पे एक्टिविटी करके देख भी सकते हो. ठीक है.
Light both the candles. Cover one of the candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. Do both the candles continue to burn or go off? You must have observed that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some times, whereas the other candle continued burning. जिसके ऊपर आपने टम्बलर रखा था वो बुझ जाएगी और दूसरी वाली जलती रहेगी. Why this is important? Because this para is very important. It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. जो ग्लास टम्बलर के बाहर वाली जो कैंडल है उसको एयर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी और दूसरी वाली को नहीं मिलेगी. So what we understood from here? Which gas supports burning? Oxygen. So oxygen supports burning. Oxygen gas supports burning. समझ में आया बेटा? Everyone understood this? मैम पोल्यूशन Yes, ma'am. So which gas helps in burning? Then oxygen. Very good. Oxygen is a gas which helps you in the process of burning. The next gas that you have to learn is nitrogen. अभी आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो होती है इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग. नाइट्रोजन गैस बर्निंग में हेल्प नहीं करती है. This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air is nitrogen. नाइट्रोजन जो होती है वो एयर में 78% होती है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट 78%. 78% जो कंपोनेंट एयर में प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन. बट इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग. समझ में आ गया? नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमने आपको दिखाया था इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू फेल्ट सफोकेशन. हमें जो सफोकेशन फील होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको क्या फील होता है? सफोकेशन. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस. हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो क्या करते हैं? वो कौन सी गैस को कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और वो क्या निकालते हैं, क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. इसीलिए कहा जाता है कि ड्राई पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी. क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? मैम जो घी के दिए बनाए जाते हैं मैम, हाँ. वो मैम घी के क्यों बनाए जाते हैं? क्या चीज? मैम जो बताया जाता है कि घी के दिए बनाओ, घी के दिए बनाओ. उसमें ये होता है कि जो दिए जलाए जाते हैं वो घी के होते हैं. मतलब उसमें घी आप डालते हो उससे आप उसे बर्न करते हो. ठीक है, घी के दिए नहीं बनते हैं. मैम मतलब कि मैम बोला जाता है कि इससे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है. हाँ. And produce carbon dioxide. Plant and animal matter on burning also consumes oxygen and produces mainly carbon dioxide and few other gases. Dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories. आपको समझ में आया बेटा? What is smoke? Smoke is actually Smoke is containing few harmful gases This as well takes the as dust harmful smoke particles. and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in air.
activity. Find a sunny room in your school or home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now, open the door or a window facing the sun, just a little, in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of Some sunlight. dust. One dust. Air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases, water vapor and dust particle. So now this is the most important diagram that you will understand, that all the air around us, सारी की सारी एयर में 78% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। 21% कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और बाकी जितनी अदर गैसेस हैं जो भी आपने पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, दे ऑल कम अंडर 1%। बाकी सब बचा हुआ किस में आता है? 1% में आता है। So what you will understand, air contains mostly oxygen and nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together makes up 99% of the air. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 99% एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। The remaining 1%, जो बचा हुआ 1% है, it constituted by carbon dioxide and a few other gases. तो बाकी जो बचे हुए 1% में आपकी सारी बची हुई अदर गैसेस आ जाती हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। जो आपने आज पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कि एयर किससे बनी होती है, तो एयर इज मेड अप ऑफ majorly two gases, nitrogen 78%, oxygen 21% and the rest 1%. जो अदर गैसेस है वो 1% में आती हैं, उसी 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस अदर गैसेस। क्लियर? सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सबको समझ में आया?